Hello students and welcome to the new session of English class. Today we are going to start a new chapter, The Silver Arrow. Students, this chapter is about Robin Hood, a legendary hero of English stories. Robin Hood, along with his team members, used to snatch away the wealth and money from the rich people and he used to distribute it among the poor people. He was also known for his archery. He was a very good archer of England. आर्चरी मीन्स तीर अंदाजी है ना, जो तीर और कमान यूज़ करके जो शूट करता है, दैट इज़ आर्चरी. So today we are going to read a story about Robin Hood. So let's start. Some people help those who are needy. Circle the qualities that describe them. So here some words are given. You have to circle the qualities of the people that are related to the people who help the needy people. Okay, so mean means matlabi. So this could not go with that. Next, kind. Yes, the person who helps the needy people are kind. Helpful. Yes, they are helpful. Cruel. Yes, sorry, no, they are not cruel. Generous. Yes, they are generous. And caring. Yeah, of course they are caring. So we'll circle kind, helpful, generous and caring. Now let's start the reading of the story. It was a sunny Wednesday in Nottingham. One of the sheriff's men came riding through the town. He took out a poster from the bag and hung it on the lamppost. A little boy was watching him. As soon as he left, the boy took the poster and ran off into the woods. It was a sunny Wednesday in Nottingham. Here the writer has described the weather on Wednesday in Nottingham. So what kind of weather it was? It was sunny weather and the day was Wednesday and the place was Nottingham. Nottingham is a place in England. Okay. So one of the sheriff's men came riding through the town. Sheriff is the person who is responsible to maintain law and order of the town. वो पर्सन जो टाउन की कानून की सारी व्यवस्था देखता है उसको शेरिफ कहा जाता है. वन ऑफ द शेरिफ्स मैन केम राइडिंग थ्रू द टाउन. सो शरीफ्स के बहुत सारे आदमी होते हैं, उनके अंडर में जो काम करते हैं उनमें से एक आदमी आया. राइडिंग मीन्स द पर्सन वॉज ऑन हॉर्स थ्रू द टाउन. He took out a poster from his bag and hung it on a lamp post. वो जो आदमी भागकर आया था टाउन की तरफ से, तो उसने अपने बैग से एक पोस्टर निकाला और लैम्प पोस्ट पर उसने वहाँ पर हंग कर दिया. इट हंग ऑन द ही हंग्ड ऑन द लैम्प पोस्ट. अ लिटिल बॉय वॉज वॉचिंग हिम. वहाँ कोई एक छोटा सा लड़का था, वो उसको कंटिन्यूसली वॉच कर रहा था. वो देख रहा था कि ये क्या हो रहा है. As soon as he left, the boy took the poster and ran off into the woods. जैसे ही वो आदमी पोस्टर वहाँ लगाकर चला गया, वैसे ही वो छोटा जो लड़का है वो वहाँ आया, उसने वो पोस्टर उतारा and he ran into the woods. Woods means forest. तो वो जंगलों की तरफ चला गया पोस्टर लेके. Where's Robin? He shouted as he ran through Sherwood Forest. So the boy went in the forest in search of Robin Hood. वो Robin Hood को ढूंढ रहा था. और जो फॉरेस्ट का जो नाम है वो क्या था? शेरवुड, है ना. सो वो वहाँ पर जाके रॉबिन को आवाज़ लगाने लगा, उसे ढूंढने लग गया. द बॉय वॉज लुकिंग फॉर रॉबिन हुड, द बेस्ट आर्चर इन ऑल द इंग्लैंड. सो वो लड़का किसको ढूंढ रहा था? वो रॉबिन हुड को ढूंढ रहा था. रॉबिन हुड जो कि एक बहुत अच्छे आर्चर, बहुत अच्छी तीरंदाजी करते थे. इंग्लैंड के बहुत फेमस आर्चर थे. Robin Hood was the leader of a group of outlaws called the Merry Men. तो जो रॉबिन हुड थे वो एक ग्रुप के लीडर थे. उस ग्रुप का नाम था मैरी मैन और उसमें बहुत सारे उसके पार्टनर्स भी थे. अ ग्रुप ऑफ आउटलॉज. आउटलॉज मीन्स व्हेन यू आर हाइडिंग फ्रॉम द लॉज. जब आप कानून के खिलाफ जाके कुछ करते हो, दैट इज आउटलॉज. As soon as he left, the boy took the poster and they all lived in the forest and wore green jackets. तो ये जो मैरी मैन थे ये सभी फॉरेस्ट में रहते थे, जंगल में रहते थे और इन्होंने अपना एक सिंबल बना रखा था, ये ग्रीन जैकेट्स ही पहनते थे.
Robin Hood took the poster from the boy and read it. रॉबिन हुड ने उस लड़के से पोस्टर लिया और उसे पढ़ा. Lads, we are going to Nottingham, he called out to his band of outlaws. The sheriff's holding an archery contest in 3 days, and the prize is a silver arrow. सो जैसे ही रॉबिन हुड ने पोस्टर पढ़ा, उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली उसमें से, तो उन्होंने अपने जो पार्टनर्स थे, लैड्स, लैड्स मीन जैसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं ना, हे गाइज फॉलो मी, तो सिमिलरली इज अ लैड, इट इज़ यूज टू डिनोट बॉयज. सो लैड्स, वी आर गोइंग टू नॉटिंगहम, ही कॉल्ड आउट टू हिज बैंड ऑफ आउटलॉज. बैंड ऑफ आउटलॉज मतलब ग्रुप ऑफ आउटलॉज. उन्होंने अपने जो भी ग्रुप था, जो सारे सभी एक ही तरह के रूल्स फॉलो करते थे, वो जो ग्रुप था, उनको कहा कि हम सब नॉटिंगहम जा रहे हैं बिकॉज द शरीफ इज़ होल्डिंग एन आर्चरी कॉन्टेस्ट इन 3 days. जो वहाँ का जो शरीफ है वो आर्चरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इन्हीं 3 दिनों में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. एंड द प्राइज इज़ अ सिल्वर एरो. और जो उसका कॉन्टेस्ट का जो प्राइज़ है वो क्या है, एक सिल्वर चांदी की एरो मिलेगी जो भी जीतेगा उसको. Don't go, it's a trap. He's trying to capture you, said one of them. इनके ग्रुप में जो एक आदमी, कोई भी एक आदमी जो था, उसने रिस्पॉन्ड किया कि मत जाना, इट्स अ ट्रैप. ट्रैप मीन्स जाल, है ना. तो उसने बोला कि ये तो एक ट्रैप है, एक तरह का जाल बिछाया है आपको पकड़ने के लिए. टू कैप्चर यू, कैप्चर मीन्स पकड़ना, है ना. सो उसने उसकी टीम में से एक आदमी ने बोला कि वहाँ मत जाना, ये तो जाल बिछा गया है आपको पकड़ने के लिए. सेड वन ऑफ हिज मैन. नॉनसेंस, आई विल नेवर कैच हिम, सॉरी ही विल नेवर कैच मी, रॉबिन हुड आंसर कॉन्फिडेंटली. रॉबिन हुड को बहुत कॉन्फिडेंस था अपने अंदर. तो रॉबिन हुड ने कहा कि ये सब फालतू बातें हैं, वो कभी मुझे पकड़ नहीं पाएगा. एंड ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिज आंसर. Robin Hood was a nobleman at one time, faithful to the king. When the king was fighting wars in far off lands, he left his brother, the prince, to rule in his absence. But the prince was an evil man. He took away the lands of the noblemen who were royal to the king. He treated his people badly, and they began to dislike him. Last paragraph. Robin Hood was a nobleman at one time. Robin Hood was a nobleman at one time, faithful to the king. When the king was fighting wars in far off lands, he left his brother, the prince, to rule in his absence. But the prince was an evil man. He took away the lands of all the noblemen who were loyal to the king. He treated his people badly, and they began to dislike him. So रॉबिन हुड वॉज अ नोबल मैन एट वन टाइम. रॉबिन हुड एट वन टाइम मतलब किसी समय में रॉबिन हुड जो नोबल मैन हुआ करते हैं. नोबल मैन मीन्स अ मैन हु इज़ हैविंग अ हायर पोस्ट और रैंक, मतलब कोई अच्छी पोस्ट पर और अच्छे ओहदे पे रहता है, उसे हम नोबल मैन बोलते हैं. तो रॉबिन हुड है वो एक बहुत अच्छी पोस्ट पर थे पहले कभी. फेथफुल टू द किंग, फेथफुल मीन्स जो राजा था वो बहुत रॉबिन हुड पर विश्वास करता था. When the king was fighting wars in far-off lands, he left his brother the prince to rule in his absence. जब राजा को कहीं पर युद्ध के लिए जाना पड़ा, बहुत दूर जाना पड़ा, तो उन्होंने अपने जो भाई हैं उनको वहाँ पर रूल करने के लिए बिठा दिया. He left his brother the prince to rule in his absence. अपनी एब्सेंस में अपने भाई को वहाँ बिठा दिया. But the prince was an evil man. लेकिन जो प्रिंस, जो उनका भाई था राजा का, वो इविल मैन, इविल मतलब बहुत बुरा आदमी था. ही टुक अवे द लैंड्स ऑफ ऑल द नोबल मैन हु वर लॉयल टू द किंग. जो भी नोबल मैन, जितने भी नोबल मैन थे, जितने भी अच्छे पोस्ट पर जो थे, पर्सन्स थे, उनको उनकी जितनी भी ज़मीन जायदाद वगैरह थी वो इस प्रिंस ने उनकी अपने कब्ज़े में कर ली थी, जो भी किंग के प्रति वफादार थे उनकी. ही ट्रीटेड हिज पीपल बैडली एंड दे बिगैन टू डिसलाइक हिम. और वो हर किसी को बहुत ही बुरे तरीके से व्यवहार करते थे और लोग उनसे बहुत ही नफरत करते थे.
सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम इतना ही यहीं पे पॉज करेंगे. सो एक बार मैं थोड़ा सा आपको फिर से बता दूं कि इट वाज अ सनी डे एंड द शेरिफ of a town have organized a archery contest. और रॉबिन हुड को इसका पता चलता है कि टाउन में कोई आर्चरी कॉन्टेस्ट है जो शेरिफ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. तो उनके जो ग्रुप में एक आदमी है, उन्होंने कहा कि आप इस कॉन्टेस्ट में मत जाइए बिकॉज जो शेरिफ है वो ये ट्रैप बिछा रहे हैं, वो जाल बिछा रहे हैं आपको पकड़ने के लिए. सो और फिर रॉबिन हुड के बारे में यहाँ बताया गया है कि रॉबिन हुड किसी टाइम में बहुत ही नोबल मैन थे, बहुत अच्छी पोस्ट पर थे. ही वॉज हैविंग सम काइंड ऑफ पोजीशन एंड ही वॉज वेरी मच फेथफुल टू द किंग. राजा को इन पर बहुत विश्वास था. लेकिन एक बार जब राजा को युद्ध के लिए कहीं बाहर जाना पड़ा तो उन्होंने अपने जो सिंहासन पर अपना अपना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो हैंड ओवर कर दी. किसको? अपने ब्रदर, अपने भाई को. और उनका जो भाई था वो ही वॉज ए इविल मैन. इविल मैन मीन्स वो बहुत ही बुरा आदमी था. वो लोगों को बहुत बुरी तरीके से व्यवहार करता था. प्लस उनकी जितनी भी ज़मीन वगैरह थी वो उन्होंने अपने कब्ज़े में कर ली थी और सारे लोग उसको कोई भी उसे पसंद नहीं करता था. So the other part will continue in our next video. Till here, you have to read this page and you can underline the difficult words. Okay, students, that's all for today. Thank you.